good morning students. So welcome back on my YouTube channel Math Mentor. So today I am going to start the miscellaneous exercise of the topic limits. In previous some video lecture we completed all exercise, that is 7.7 up to 7.7. So there are more 4 articles, that is limits of algebraic function, limits of trigonometric function, limits of exponential function, limits of trigonometric function, and last is limits at infinity. That is the main 5 article of the topic we have already completed in 7.7 exercise. Mean 7 exercise में पूरा किया है हमने. So और एक exercise है, that is a miscellaneous exercise. So miscellaneous exercise को क्या कहते हैं कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे कि थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग के है, थोड़ा क्रिटिकल लेवल थिंकिंग के है, थोड़ा अलग जजमेंट के है, वो एग्जाम्पल मिसलेनियस में होते, बट सब नहीं होते, कुछ होते. सो जो कुछ एग्जाम्पल्स है जो मुझे लगता है कि थोड़ा टफ है, बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बच्चे इसको ट्राई नहीं कर सकते, ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पर कुछ अलग कंसेप्ट है, बच्चे सॉल्व करेंगे लेकिन कुछ अलग कंसेप्ट है, वो मुझे आपको बताना है. सो दैट एग्जाम्पल्स टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट. We have to complete that examples. Okay, so that are examples, some examples from miscellaneous exercise. Okay, so let's see the first example of today's video lecture, that is example number 7 from exercise miscellaneous exercise. This is limit x tends to 0 sec x square minus 1 divided by x raised to 4. So यहाँ पर एक ट्रिगोनोमेट्री की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इससे देखो साइन स्क्वायर एक्स, इट मीन्स वी कैन राइट साइन एक्स होल स्क्वायर, बिकॉज ये फंक्शन का स्क्वायर है. साइन एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. तो साइन एक्स का होल स्क्वायर इट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स, बट दिस इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर. यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सो ये एक्स स्क्वायर है एंगल का स्क्वायर. दिस इज द पोजीशन ऑफ एंगल. यहाँ पर एंगल का स्क्वायर है और ये फंक्शन का स्क्वायर है. सो साइन एक्स स्क्वायर वी कांट राइट साइन स्क्वायर एक्स. सो लाइक दिस इज सेक एक्स स्क्वायर. It is not sec square x. Sec x square and sec square x are completely different. So ये यहाँ पर important concept है. बहुत सारे बच्चे यहाँ पर confuse होते हैं कि sin x square means sin square x, sec x square means sec square x. It is absolutely wrong. So sec x square, it is a sec x square. It is a square of that is angle, but a sin square x it means sin x whole square. It is a square of function, trigonometric function. Okay, so how to solve this? So this is absolutely 0 by 0. Sec 0, 0 का square is 0. Sec 0 is 1. 1 minus 1 is 0. 0 raised to 4 is 0. It's a 0 by 0 indeterminate form. We have to make it determinate by using the procedure. Here we have to apply the rationalization. Sec x square minus 1 divided by x raised to 4 multiplied on both sides by sec x square plus 1 divided by sec x square plus 1. Okay, now it is a sec theta minus 1, sec theta plus 1, a minus b, a plus b, that is a square minus b square. So we can write for this. So limit x tends to 0. It is a sec square x square minus 1 divided by x raised to 4 in bracket sec x square plus 1, a minus b, a plus b, a square minus b square. 1 square is 1, so sec square minus 1, sec square theta minus 1. What is the formula for sec square theta minus 1? It is a tan square theta. It is identity. So we can write limit x tends to 0. This is a tan square, angle x square है, tan square x square divided by x raised to 4 sec x square plus 1. अब ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर x raised to 4 है, इसको स्क्वायर में इंक्लूड करेंगे. सो दिस बिकम्स लिमिट x tends to 0. सो tan x square divided by x square होल स्क्वायर. ये ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर x raised to 4 है, इसको स्क्वायर में अगर इंक्लूड करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा. x स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होता है? x raised to 4 होता है. सो tan x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये फैक्टर एज इट इज विच इज अ डिटर्मिनेट फॉर्म. ये डिटर्मिनेट फॉर्म में है बिकॉज इट्स नॉट 0 by 0. यहाँ पर हम 0 डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सो टेकिंग सेपरेट लिमिट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसका और इसका सेपरेट लिमिट आप ले लो, वो स्टेप आप एक्सटेंड करो. मैं यहाँ पर एक रीजन लिखता हूँ. अगर x टेंड्स टू 0 है तो x स्क्वायर आल्सो टेंड्स टू 0.
x 0 तो x square भी 0 होगा, x approaches to 0, it is obviously x square also approaches to 0. tan x upon x tends to 1, so tan x square upon x square also tends to what? 1. When x tends to 0, when x square tends to 0, tan x square upon x square also tends to 0. So limit of numerator is 1. Limit of sec 0 is 1. यहाँ पर मैं sec 0 लिखता हूँ, sec 0 plus 1, which is equal to 1 upon 1 plus 1. So what is the limit? 1 by 2. So this is the answer. So this answer is the limit of the given function. Okay. So different example था, ऐसे exercise में example नहीं है, different logic है, different concept है trigonometry की, so मैंने example लिया. Okay. So this is the 7th example from miscellaneous exercise. So let's start the next example. अब इसके बाद कौन सा example लेना है देखो. Let's see the example number next. अब ये सब easy examples हैं. 8, 9, 10, 11 you can solve because this is a very simple base examples. We'll take the example number 12 directly. In example number 12, this is log x minus log 2 upon x minus 2 at x tends to 2. So example number 12 directly after 7. मैं पूरे example नहीं लूँगा, कुछ examples जो really different है, एक्सरसाइज में ऐसे एग्जाम्पल नहीं हुए हैं, वो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लूँगा. सो यल इज इक्वल टू, देखो लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 है, लॉग एक्स माइनस लॉग 2. बहुत सारे एग्जाम्पल लॉगरिथमिक फंक्शन के हुए हैं, बट ऐसे एग्जाम्पल नहीं हुए. जो भी एग्जाम्पल हुए सब एक्स टेंड्स टू 0 के थे, बट यहाँ पर एक्स टेंड्स टू 2 है. हम डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे, देखो क्या होगा, log 2 माइनस log 2 0, 2 minus 2 0 because x tends to 2, it's absolutely 0 by 0 indeterminate form. So logarithmic function का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला मेंशन करता हूँ. लिमिट x tends to 0 log of 1 plus x divided by x is equal to what? 1. So x must be tends to 0, 0 ही होना चाहिए. अगर 0 नहीं तो हम 0 by 0 फॉर्म में 0 नहीं है, x tends to 0 नहीं तो we apply the substitution method. Put x is equal to 2 plus h. As x tends to 2, h tends to what? 0. So replace x by 2 plus h, x by 2 plus h. As x tends to 2, h tends to 0. So limit becomes, limit h tends to 0. So log of 2 plus h minus log 2 divided by 2 plus h minus 2. सो ऐसे एक भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज में नहीं है, सो मैंने एग्जाम्पल चूज किया लेने के लिए एक मिसलेनियस का. सो ये +2 -2 कैंसल. नाउ वी हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, रूल्स ऑफ लॉगरिथम. log m minus log n, we can write log m by n, 2 plus h by 2 divided by what? h. Now l is equal to limit h tends to 0, सेपरेट डिवाइड करेंगे, log ऑफ 1 plus h by 2 डिवाइडेड बाई h, 1 plus h by 2 डिवाइडेड बाई h. सो नाउ हमें इसको फोकस करना है कि ये फॉर्मूला कैसे सेटिस्फाई करेंगे. देखो 10 h, यहाँ पर h वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल है. वेरिएबल डजंट मीन h रहने दो, t रहने दो, x रहने दो, y रहने दो, z रहने दो, थीटा रहने दो. सिर्फ फॉर्मूले की जो कंडीशन है उसको हमें सेटिस्फाई करना है. देखो h टेंड्स टू 0 है, 1b 1 प्लस b, सिर्फ ये x और ये x सेम होना जरूरी है. यहाँ पर h by 2 है तो यहाँ पर भी h by 2 होना जरूरी है. सो हम यहाँ क्या करेंगे, उस h by 2 को एडजस्ट करेंगे. इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ अलजेब्रा एडजस्टमेंट. 1 plus h by 2, सो डिवाइडेड बाई h by 2 लिखेंगे. क्या किया मैंने, 1 by 2 से डिवाइड किया, 1 by 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड. सो मैं इसको राउंड बनाता हूँ. इट राउंड का मीनिंग होता है कि फॉर्मूला सेटिस्फाइड है. सो 1 into 1 by 2 it is equal to 1 by 2. So what is limit? 1 by 2. So 1 by 2 is the limit of example number 12. So let's copy it. I will select the example for next. So 13 is also important, which is completely different.
ए बी रेस टू एक्स ए रेस टू एक्स बी एक्स स्क्वायर माइनस 1. So let's start the 13 number example which is also completely different. एक्सपोनेंशियल के भी एग्जाम्पल बहुत सारे लिए हमने एक्सरसाइज के, बट एक्सटेंड्स टू जीरो सब एग्जाम्पल में एक्सटेंड्स टू जीरो ही था. सो वो एग्जाम्पल लेंगे जो जीरो नहीं है. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल नंबर 13 नाउ. Example number 13, L is equal to limit x tends to 1 a b raised to x minus a raised to xb. I will check once again. A b raised to x minus a raised to xb divided by x square minus 1. x square minus 1. देखो अब यहाँ पर क्या है. ये तो डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जांपल, बिकॉज ए रेस टू एक्स बी रेस टू एक्स है. सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला वहाँ पर सेटिस्फाई करना है. पहले हम फॉर्मूला यहाँ पर लिखता हूँ. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए टू द पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ए. सो ये फॉर्मूला हमें सेटिस्फाई करना है यहाँ पर. तो ये तो फिक्स है. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन का ये एक्स अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है. तो यहाँ पर 0 नहीं है और ये 0 बाई 0 फॉर्म में है. देखो b रेस टू 1 b a रेस टू 1 a b माइनस ए बी 0 1 माइनस 1 0. इट्स एब्सोल्युटली 0 बाई 0. सो सब्स्टिट्यूशन इज द ओनली ऑप्शन. पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h. एज x टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू 0. So therefore L limit becomes h tends to 0 now. So a b raised to 1 plus h minus a raised to 1 plus h into b divided by 1 plus h whole square minus 1. जहाँ यहाँ पर x है, ये भी x है, ये भी x है, सब x की जगह पर मैंने क्या पुट किया, रिप्लेस किया 1 plus h किया. So now we have to follow the some basic rules of indices, power indices. a b raised to h a into a raised to h b के पावर में 1 प्लस एच है, ए के पावर में 1 प्लस एच है, तो बेस स्प्लिट करेंगे. दैट इज द रूल्स ऑफ पावर एंड इंडाइसेस. ए रेस टू 1 ए रेस टू एक्स बी रेस टू 1 बी रेस टू एक्स. ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस 1 एज इट इज. Okay, here we plus 1 minus 1 get cancel. So L becomes limit h tends to 0 now, taking AB common in bracket b raised to h minus a raised to h divided by taking h common 2 plus h into h. 2 plus h into h कॉमन लिया और यहाँ पर a भी कॉमन लिया. a भी है, b रेस टू h माइनस a रेस टू h b रेस टू h माइनस a रेस टू h. नाउ एज पर रिक्वायरमेंट हमने बहुत सारे एग्जाम्पल इस टाइप के लिए -1 प्लस 1 करना है ब्रैकेट में, b रेस टू h माइनस 1 a रेस टू h माइनस ब्रैकेट में से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे एट अ टाइम, बिकॉज बहुत बार हुआ है. ये 2 प्लस h इंटू h. ऊपर -1 प्लस 1 किया और इमीडिएटली माइनस कॉमन लेने के बाद -1 होगा, ए भी -1 है, b रेस टू h -1 a रेस टू h -1 बाई h है, तो सेपरेट डिवाइड करेंगे. ये दो फैक्टर जो टर्म है सो उसको बाजू में लेंगे, बिकॉज दैट आर डिटर्मिनेट फॉर्म. सो ए बी डिवाइडेड बाय 2 प्लस h इंटू b रेस टू h -1 बाई h माइनस a रेस टू h -1 बाई h. ओके, सो सेपरेट डिवाइड किया, ये टर्म बाजू में लिए. सो न्यूमरेटर ए बी 2 प्लस 0 वी कैन रिप्लेस h बाय 0 बिकॉज h टेंड्स टू 0. दिस इज log b, दिस इज log a. फॉर्मूला सेटिस्फाई, ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हुआ है. सो ए बी
divided by 2 into log b by a. So this is the limit of the function. Okay, so answer is this. 13 भी हो गया, 12, 13 एंड 17 एग्जाम्पल लिए, बहुत सिंपल है. लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल. Okay, so after completion of example number 13, now we will start the example number 16. 14, 15 is completely so आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल लेवल के एग्जाम्पल, इसमें कुछ अलग थिंकिंग है, अलग जजमेंट नहीं है. बट 16 इज कम्प्लीटली डिफरेंट. लेट्स सी द एग्जाम्पल नंबर 16 नाउ. अलग एग्जाम्पल है. लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स कॉस ए माइनस ए कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए. ऐसे एक भी एग्जाम्पल आपने टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में नहीं देखे होंगे. अलग एग्जाम्पल, एक्स कॉस ए माइनस ए कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस ए. इसे आप एब्सोल्युटली 0 बाई 0. एक्स की जगह पर ये, एक्स की जगह पर ये, एक्स की जगह पर ये कॉस ए माइनस ए कॉस ए 0 डिवाइडेड बाई ए माइनस ए 0. So we can solve this example by substitution method also. So you can try this substitution method. मैं आपको कुछ अलग तरीके से इसको सॉल्व करके देता हूँ. सब्सटीट्यूशन क्या होंगे? पुट x इज इक्वल टू ए प्लस एच एज x टेंड्स टू ए, एच टेंड्स टू 0. सो जहाँ पर x है वहाँ पर ए प्लस एच रखना है आपको और सॉल्व करना है. डेफिनेटली वो मेथड से आपको आएगा, लेकिन मैं कुछ अलग मेथड से आपको एक्सप्लेन करूँगा. सो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट करता हूँ. लिमिट x टेंड्स टू ए ही रहने देता हूँ. एक्स कॉस ए, एक कांस्टेंट टर्म ए कॉस ए माइनस ए कॉस ए प्लस ए कॉस ए, एक कांस्टेंट टर्म है. अब कांस्टेंट हम किसे कहते हैं? जहाँ पर वेरिएबल नहीं उसको हम कांस्टेंट कहते हैं. सो आपके कांस्टेंट मीन्स नॉट ओनली नंबर्स 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 5. दीज आर नॉट ओनली कांस्टेंट. कुछ आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं, कुछ ट्रिगोनोमेट्री भी कांस्टेंट होते हैं. सो ये कांस्टेंट है, आर्बिटरी कांस्टेंट है, और एक कॉस है ट्रिगोनोमेट्री कांस्टेंट है. सो ये कॉस है, ये कॉस है, वहाँ पर एक्स नहीं है, वेरिएबल नहीं, मीन्स ये कांस्टेंट टर्म ही है. उसको मैंने सब्सट्रैक्ट किया, उसको बैलेंस करने के लिए ऐड किया. and that term is what? a cos a. This minus a cos x as it is. Note this step. ये स्टेप आपको नोट करना है, अलग स्टेप है, अलग जजमेंट है. डिवाइडेड बाय x माइनस ए. नाउ दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a. यहाँ से cos a कॉमन निकालेंगे, x माइनस ए cos a. यहाँ से a कॉमन निकालेंगे, a इंटू cos a माइनस cos x डिवाइडेड बाय x माइनस a. सो आफ्टर सेपरेट डिवाइडिंग, उसको सेपरेट डिवाइड करेंगे आप. लिमिट x टेंड्स टू a, x माइनस a cos a डिवाइडेड बाय x माइनस a प्लस a into this is a cos c minus cos d. फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन cos c minus cos d. cos c minus cos d का फॉर्मूला है 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2. so here 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 divided by x minus a. Okay, this x minus a cancel. Limit of constant term is constant term. Let's see here. L is equal to this cos a as it is plus this 2a or this term as it is 2a sin a plus x by 2. L is equal to ये cos a as it is plus limit x tends to a. ये cos a का लिमिट cos a ही हुआ, कांस्टेंट टर्म का लिमिट कांस्टेंट टर्म होता है. नाउ इसका सेपरेट लिमिट लेंगे a टर्म का इनटू लिमिट x tends to a cos a minus x.
सो यहाँ पर 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन d माइनस सी बाई टू आना चाहिए। यहाँ पर हम x माइनस ए बाई टू करेंगे, नहीं तो ये साइन चेंज करो टू बी सेम, साइन x माइनस ए बाई टू डिवाइडेड बाई x माइनस ए। ओके, सो L इज इक्वल टू दिस इज कॉस ए प्लस ए टू ए साइन x की जगह पर ये रखो साइन a प्लस ए टू ए बाई टू, एक्स की जगह पर a प्लस ए टू ए बाई टू। दिस इज अ डिटर्मिनेट फॉर्म, बट यहाँ पर एंगल एडजस्ट करना है, बाय 2 करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे। सो दिस टर्म इज 1, ऑल कंडीशंस आर फुलफिल, इट्स 1 into 1 by 2, a 1 by 2, this 2 and this 2, this multiplied by 2 upon 2 cancel, this multiplied by 2 upon 2 cancel. So what is answer? Cos a plus a into sin a. So सबसे important ये स्टेप, we have to note down this step, हमें इसको नोट करना है कि हम इसको ये cos a ऐड किया, ये cos a सब्सट्रैक्ट किया। दिस एग्जाम्पल डेफिनेटली सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन इज द रेगुलर प्रोसीजर टू इवेल्युएट द लिमिट ऑफ एनी फंक्शन, बट यहाँ पर कुछ अलग जजमेंट से सॉल्व करके दिया है। सो नोट दिस स्टेप एंड कॉपी दिस सोल्यूशन। दिस इज आंसर cos a प्लस a sin a। सो आप कौन से मेथड से लिमिट सॉल्व करो, आंसर तो लिमिट ऑफ फंक्शन इज यूनिक, वो आंसर तो यूनिक ही आता है। किसी मेथड से सॉल्व करो, यही आंसर आने वाला है cos a प्लस a sin a। सो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल। सो आंसर ऑफ 16 इज व्हाट दिस। ओके, लेट्स नेक्स्ट। Okay, let's start the example number 17. After 16, 17 also different category example. So look at the 17 number. लेंगे solution है, limit, यहाँ पर example है, limit x tends to pi by 4 sin x minus cos x whole square divided by root 2 minus sin x minus cos x. सो अगर ये 0/0 फॉर्म में नहीं है तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं करेंगे, बट ये एग्जांपल 0/0 है। साइन π/4 1/√2 cos π/4 also 1/√2, 1/√2 minus 1/√2 0, न्यूमरेटर इज 0। साइन π/4 1/√2 cos π/4 1/√2, दोनों माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 इज माइनस 2/√2, और माइनस 2/√2 √2 होता है। सो √2 माइनस √2 कितना होता है 0। सो इट्स 0/0। सो हमें यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं, हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। पुट x इज इक्वल टू π/4 प्लस h एज x टेंड्स टू π/4, h टेंड्स टू व्हाट 0। सो लेंथी है, बहुत लेंथी है सब। यहाँ पर x की जगह पर π/4 प्लस h, π/4 प्लस h, π/4 प्लस h, and then we have to apply the compound angle formula. So limit, now h tends to 0। देखो 1 by 1 साइन, अब एक स्टेप में यहाँ पर स्किप करता हूँ, साइन π/4 प्लस h का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करता हूँ। साइन π/4 cos h प्लस cos π/4 sin h माइनस cos π/4 cos h। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो यहाँ पर माइनस आएंगे, माइनस साइन π/4 इंटू साइन h, इट इज अ होल स्क्वायर। दिस इज ओनली न्यूमरेटर। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, √2 माइनस साइन π/4 cos h, माइनस से मल्टीप्लाई करने से प्लस बिकम्स माइनस cos π/4 sin h, दिस माइनस cos a प्लस b cos π/4 cos h, ये माइनस से माइनस इंटू माइनस इज व्हाट प्लस sin π/4 sin h। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टेप्स, बिकॉज मैंने यहाँ पर एक स्टेप जंप की है और कैलकुलेशन भी थोड़ा शॉर्ट में किया है। सो आखिरी में तो आप डेफिनेटली इसको समझ पाएंगे। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन π/4 1/√2 cos h प्लस 1/√2 sin h, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे
minus 1 by root 2 cos h minus into minus plus 1 by root 2 sin h, and it is whole square. This is now numerator. Denominator ये root 2 minus 1 by root 2 cos h minus 1 by root 2 sin h minus 1 by root 2 cos h plus 1 by root 2 sin h. सॉल्यूशन लेंगे दिए, कंसेप्ट बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन बड़ा है लेंगे है, बट सिस्टम और ये जो एग्जांपल बहुत सिंपल है, ये कैलकुलेशन वजह से मिस्टेक होने की फुल चांसेस है. ये प्लस 1 बाय रूट 2 कॉस एच माइनस 1 बाय रूट 2 कॉस एच कैंसल, minus 1 by root 2 sin h plus 1 by root 2 sin h cancel. So now see the numerator, limit h tends to 0, 1 by root 2 sin h, 1 by root 2 sin h, it's a 2 by root 2 sin h, it's a root 2 sin h. मैंने यहाँ पर भी एक स्टेप जंप की है. So 2 by root 2 after rationalization it becomes root 2. root 2 से multiply करो both side, definitely you will get root 2. root 2 sin h whole square divided by ये root 2 minus 1 by root 2 cos h minus 1 by root 2 cos h, it's minus 2 by root 2 cos h, minus 2 by root 2 is what? root 2 cos h minus root 2 cos h. So this is limit h tends to 0, root 2 square is 2, 2 sin square h, root 2 common in bracket 1 minus cos h. Okay, so limit h tends to 0, 2 by root 2 again root 2 sin square h means 1 minus cos square h, sin square h means 1 minus cos square h, 1 minus cos square h की आइडेंटिटी 1 minus cos h 1 plus cos h आइडेंटिटी उसकी, और डिनोमिनेटर में 1 minus cos h only because 2 by root 2 is root 2. साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा करता हूँ, 1 माइनस कॉस एच 1 प्लस कॉस एच. सो नाउ दिस टर्म गेटिंग कैंसल, बिकॉज ऑफ दैट टर्म इट बिकम्स 0 by 0. जिस टर्म की वजह से ये फंक्शन 0 by 0 आता था उसको मैंने कैंसिल किया, लेकिन ऐसे 0 आए ऐसे 0 कैंसिल नहीं होता, नहीं तो इसको 0 कैंसिल करेंगे. फैक्टर कैंसिल होगा, जिस फैक्टर की वजह से 0 by 0 आता था वो कैंसिल होगा, बट 0 अपॉन 0 ये कैंसिल कभी नहीं होगा. सो नाउ रूट 2 कॉस 0 1 प्लस कॉस 0, कॉस 0 इज 1, 1 प्लस 1, सो दिस इंप्लाइज 2 रूट 2. सो दिस इज द लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन. So 17 का आंसर कितना बगा? रूट 2. So this is the limit of the given function. I hope you understand the solution of 17. Completely different है, थोड़ा अलग है, जिसको मैंने सॉल्व करके दिया, और ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दूंगा. So this is the sufficient for this video lecture. So we'll take more means the remaining some examples of miscellaneous exercise of topic number 7 limits. Okay, so stay tuned on this YouTube channel Math Mentor. So today I will stop here. Thank you very much.